Good morning, students. Today we will see in a transport layer TCP congestion control, means how TCP protocol is helpful for congestion control. Congestion means what? Traffic is created in a network. So how does traffic is handled? So here one example is taken to explain this concept of congestion control. So here this is a regulating the sending rate, means if a network speed is fast, so at that time what happened, congestion problem is created in a network. In this example, see here, this step shows transmitter rate adjustment. Yes, so through that means this is a sender and this is a receiver. Yes, and this is our network. Yes, if sender can control the speed for sending the datagram. Yes, so this is a transmission rate adjustment. This is a network. But if the sender speed is high, at that time congestion problem is created. In a network, our data is sent. Yes, this is the transmission networks, means the data is sent. So here a congestion problem is generated. So whenever congestion problem is generated, so we cannot easily get datagram from network, means a receiver face congestion problem. Yes, this is a second figure. So here it shows a slow network feeding high capacity receiver. Yes, so this is a congestion here. This is internal congestion, means here it is a narrow way. Through that, if congestion problem is created, but it is a narrow way, so through that one by one packet is sent at a regular interval period of time. So congestion problem is not occurred. Yes, here a large capacity receiver, here a receiver capacity is larger to accept datagram from sender side. Yes, so congestion problem is created in a network side as well as in a receiver side. If sender speed is faster, at that time congestion is created in a network side. If receiver buffer capacity is low, yes, or small, so at that time congestion problem is created at receiver side. So to remove this congestion problem, here through this figure it shows if this way is narrow, so congestion problem can be solved. Okay, so here for controlling congestion, here TCP maintain two windows, a विंडो रिसीवर, मतलब जो भी डेटा रिसीवर लेता है, ठीक है, तो वो विंडो के थ्रू आता है. एक साइज़ है वो फिक्स की जाती थी, उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स है वो वन बाय वन आते हैं बल्क में. ठीक है, दूसरी है कंजेशन विंडो. ठीक है, तो सेंटर साइड भी विंडो मेंटेन होती है और रिसीवर साइड भी विंडो मेंटेन होती है. थर्ड पॉइंट इज स्लो स्टार्ट. ठीक है, data is sending at a regular speed. Yes, so here 1024 byte move exponentially slow start, मतलब 1024 बाइट से डेटा को हमें सेंड करना है. ठीक है, स्टार्टिंग करना है. सेट थ्रेशोल्ड मीन्स ग्रो linearly after that. ठीक है, at a starting point we are not sending data at faster rate. Whenever proper connection is established between sender and receiver, and after sending some data, then data is
send linearly faster. So in this way congestion control is possible. Now we come to the next point, that is retransmission timer. अगर कंजेशन का प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, कई बार जो पैकेट्स है उस पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देना पड़ता है, ठीक है, रिमूव कर देना पड़ता है, तभी कंजेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो उस टाइम यहाँ पे टाइमर जो मेंटेन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कांस एल्गोरिदम है, ठीक है, कांस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या है, इन डायनेमिक एस्टिमेशन ऑफ आरटीटी, ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम, आरटीटी मीन्स रीट्रांसमिशन भी बोल सकते हो या राउंड ट्रिप टाइम भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इन डायनेमिक एस्टिमेशन ऑफ आरटीटी व्हेन सेगमेंट टाइम्स आउट एंड इट इज़ रीसेंट, ठीक है, तो हमें उसका आरटीटी फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हम कांस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं और उस डेटा को फिर से हम रीट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लियर whether the acknowledgement is from original और recent, ठीक है, जो डेटा हमने सेंड किया है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो अभी वो क्लियर नहीं कि जो अक्नॉलेजमेंट मैसेज है, ठीक है, वो सपोज ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल जो मैसेज था उसका भेजना है या फिर बीच में ही वो ओरिजिनल मैसेज डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, तो उसका सेंड करना है, मतलब फाइनली रिसीवर को जो डेटा मिलेगा उसका ही हमें क्या करना है, अक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंडर को ट्रांसमिट करना है। क्यों, क्योंकि ये टीसीपी प्रोटोकॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल में अक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर साइड बिकॉज इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। सो डोंट इंक्लूड रीसेंट पैकेट्स आरटीटी इनटू कैलकुलेशन। यहाँ पे एक्चुअली है ना, आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि कांस एल्गोरिथम का यूज़ यहाँ पे होता है रीट्रांसमिशन मतलब टाइम कैलकुलेशन में, ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो रीसेंट पैकेट्स का जो राउंड ट्रिप टाइम है वो हमें कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच टाइम फेलियर डबल टाइम आउट टाइम, ठीक है, जो भी मैसेज फेल हो जाता है तो तब क्या होता है कि जो टाइम आउट पीरियड है वो डबल हो जाता है। अब यहाँ पे दो टाइमर है, एक है परसिस्टेंस टाइमर और एक है कीप अलाइव टाइमर। क्या है, सो व्हेन परसिस्टेंट टाइमर्स गोज ऑफ a transmitter pings the receiver whether the buffer space is available, ठीक है, जब परसिस्टेंस टाइमर है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो ट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, रिसीवर को नोटिफाई करेगा कि बफर में आपके बफर में स्पेस है कि नहीं है, मेमोरी में स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कीप अलाइव टाइमर। तो इफ़ आइडल मतलब अभी कीप अलाइव टाइमर है वो आइडल मोड में है, तो मतलब क्या है, चेक्स whether the connection is active and then if not close the connection, ठीक है। अगर टाइमर आइडल है तो उसके दो चांस हो सकते हैं कि कनेक्शन एक्टिव है कि नहीं, अगर एक्टिव नहीं है तो उस कनेक्शन को क्लोज कर दो। कनेक्शन मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो एक्टिव है कि नहीं है। अगर वो दोनों कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे तो हमें उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या करना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये यूडीपी प्रोटोकॉल का यहाँ पे ये डेटा फ्रेम दी है कि यूडीपी प्रोटोकॉल में किस किस टाइप के फील्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 32 बिट्स का मैसेज है, ठीक है। सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, यूडीपी लेंथ एंड यूडीपी चेकसम, ठीक है। सोर्स मतलब जो सेंडर की साइड से जो डेटा है तो उसको कौन से पोर्ट के थ्रू डेटा सेंड करता है। रिसीवर है मतलब डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में जब डेटा हम रन करते हैं या व्यू करते हैं तो कौन से पोर्ट के थ्रू वो एग्जीक्यूट होता है, तो उसका पोर्ट नंबर चाहिए, ठीक है। यूडीपी लेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे यूडीपी लेंथ में क्या है कि पर्टिकुलर जो मैसेज है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है। और नेक्स्ट है यूडीपी चेकसम,
ठीक है, मैंने पहले भी बताया था चेकसम का पूरा कैलकुलेशन होता है, सेंडर साइड भी होता है और रिसीवर साइड भी होता है। ठीक है, दोनों के कैलकुलेशन में मतलब कैलकुलेशन रिसीवर करता है और ज़ीरो आता है मतलब डेटा है वो प्रॉपरली सेंड हुआ है, ट्रांसमिशन टाइम के टाइम पे कोई एरर नहीं आई है, प्रॉपर सेंडर ने डेटा रिसीवर को डेटा सेंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है, तो रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या है? तो वो एक टेक्निक है। ठीक है, तो वो क्या करे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है, उसको बिल्ड करने के लिए, मतलब पूरा हमारा डेटा है वो हम अलग अलग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करके हम जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम बनाते हैं, तो उसकी ये टेक्निक है। ठीक है, तो वो क्या करती है, तो वो प्रोग्राम को अलाउ करती है कि फॉर वन मशीन टू अनदर मशीन में वो डेटा है उसको कॉल करती है। ठीक है, और मतलब उसको दूसरे मशीन को पता नहीं चलता कि ये रिमोट मशीन है। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बट एक ये मेथड है। ठीक है, जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स में मतलब एक से ज़्यादा मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स है, तो उस सब के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए रिमोट प्रोसीजर कॉल टेक्निक का यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ये क्लाइंट सीपीयू है, ये सर्वर सीपीयू है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है, तो क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये उसका स्टब है। ठीक है, ये ओएस है, सेम वे यहाँ पे है। तो अगर इसको कुछ डेटा यहाँ पे सेंड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे करती है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा है, डेटा इज शेयर्ड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन विद द हेल्प ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल। सिंपली यहाँ पे उसकी सिंटैक्स दी है। ठीक है, तो रिमोट प्रोसेस मतलब उसमें उसका आईपी एड्रेस चाहिए, तभी वो क्या करेगा, एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ कॉम्बिनेट करके डेटा है वो शेयर करता है। तो यहाँ पे ग्लोबल मतलब पॉइंटर और ग्लोबल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल आरटीपी। ठीक है, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या है, तो सिंपली यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, किस तरह से डेटा है वो ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे दिस इज यूजर स्पेस, ये सॉकेट है, यूडीपी प्रोटोकॉल मतलब जो हर एक 5 लेयर्स है। ठीक है, यूडीपी है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे आईपी है मतलब नेटवर्क लेयर। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, ये एथरनेट हेडर है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। तो ठीक है, जैसे वन बाय वन डेटा जाता है तो पर्टिकुलर कैसे स्ट्रक्चर बनता है जब डेटा हम सेंड करते हैं तब। ठीक है, तो हर एक का पेलोड का डेटा है वो हेडर के साथ अटैच किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर है वो चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।